Hello everyone, welcome to the next class of PsychEdu Insights with Divya. Today I'm going to speak about a very interesting concept that is compliance strategy, which is one of the most favorite questions when you speak about psychology paper 2. This basically comes under unit 8 of social psychology. So without any further ado, let me actually start with a concept. So when you speak of compliance, you need to relate it with the word request. Okay. So सोशल स्ट्रैटेजी या सोशल साइकोलॉजी में बेसिकली कुछ परसुएशन स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे कि कंफर्मिटी, ओबीडियंस, कंप्लायंस एक्सेट्रा. सो जब भी हम कंफर्मिटी के बारे में बात करते हैं, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. तो आप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, इसीलिए आप कंफर्म करते हो. द सेकेंड पार्ट इज ओबीडियंस, विच इज रिलेटेड टू अथॉरिटी, whereas compliance is directly related to request. That is whether naturally each one of us will be requesting some or the other person at some junction of a life. Okay. अभी वो जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, बट कंप्लायंस स्ट्रैटेजी आप सही तरीके का स्ट्रैटेजी अगर यूज करेंगे तो चांसेस है कि सामने वाला बंदा आपका रिक्वेस्ट डिनाई ना कर सके. दैट मीन्स यू आर परसुएडिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू टू make sure that he or she basically agrees to the request that you're putting forth in front of them. So whenever you're speaking about request, then the social persuasion strategy that comes into picture, or the concept that comes into picture, is compliance. So always remember this, that compliance is related to request. Now, what are the different strategies that will help you to convince the person or to persuade the person to abide by your request? So few very popular strategies which are undeniably the favorite questions in your net paper. So let us explore them one by one. The most favorite question which comes under compliance is the foot in the door strategy. So अगर आप इस particular diagram को ध्यान से देखें तो डोर एक बड़ी चीज है और उसके अंदर वो फुट को रखा जा रहा है. तो यही लॉजिक नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि फुट यानी छोटा, डोर यानी बड़ा. So you basically start with small request which will be accepted, and ultimately you reach a particular stage जहां पे आपका main request जो है, जो actual request है, जो कि actually बड़ा है, वो accept हो जाए. तो let us understand this with an example. Maybe your actual request is that you want to stay overnight at your friend's place. So usually maybe your parents will not allow that because that's a big request. क्या पूरा एक दिन या एक रात पूरा अपने friend के घर पे रुकना चाहते हो, and maybe your parents are not comfortable with it. So you start with a small request. That is, you insert your foot in the door, wherein you basically state that, okay, I want to do my examinations are coming, so I want to study with my friend. और एक बहुत ही important concept है जो कि हमें discuss करके समझना है. It will be better if I go to my friend's place because she knows the concept well. Okay, now since the examinations are approaching और सिर्फ आपने 1 घंटा कुछ मांगा है अपने पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स अलाउ करते, तो आपने अपना फुट इंसर्ट कर दिया. Now you are at your friend's place. Maybe after an hour or maybe after 2 hours, your parents give you a call. एंड देन दे आस्क यू कि ठीक है, आपका 1 या 2 घंटा हो गया, घर वापस कब आएंगे. तब आप कहते हो अपने पेरेंट्स से कि मम्मा पापा, बेसिकली मेरा ये कॉन्सेप्ट अभी भी हम कंप्लीट नहीं हुआ है. आई हैव फ्यू क्वेश्चंस एंड आई एम स्टिल डिस्कसिंग, सो आई विल टेक लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, मे बी 1 hour मोर. सो ठीक है. सो यहाँ पे अगेन योर पेरेंट्स have accepted the request. ठीक है, आप कंप्लीट करके आइए अपना कॉन्सेप्ट, हम वेट मीन्स वी विल गिव यू a call back or maybe when to pick up, just let us know. So again यहाँ पे आपका धीरे 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 आपका जो ये है पैर बढ़ता जा रहा है, पैर की लंबाई बढ़ती जा रही है जैसे आप दरवाजे के अंदर जा रहे हो. सो धीरे धीरे आपका रिक्वेस्ट का लेवल बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे वो रिक्वेस्ट आप करते जा रहे हो छोटे छोटे पैकेट्स में कि आपके पेरेंट्स डिनाई नहीं कर पाए. मे बी अगेन दे गिव अ कॉल एंड देन यू से दैट ओके, यहाँ पे बारिश हो रही है, नाउ इमीडिएटली आई कैन नॉट कम, so let the rain stop and then I will come. Again your parents accepted. और अभी maybe 9 o'clock हो गया है या 9:30 हो गया, and then you tell them that can I stay today over here because अभी बहुत रात हो गई and it's not possible for me to pick a bus. और यहाँ पे maybe मेरे friend के यहाँ पे भी कोई
पॉसिबल नहीं है कि कोई मुझे ड्रॉप कर पाए, और हमारा घर भी बहुत दूर है, आपको लिए भी डिस्कम्फर्ट होगा. सो नाउ दिस वाज योर एक्चुअल रिक्वेस्ट दैट यू वांटेड टू स्टे एट योर फ्रेंड्स हाउस. बट अगर स्टार्टिंग में आप यही बोलते तो शायद आपके पेरेंट्स डायरेक्टली मना कर देते. सो अभी एक ऐसे स्टेट पे आप अपने पेरेंट्स को लेकर आ गए हो कि वो आपका रिक्वेस्ट डिनाई ही नहीं कर पाएंगे. लॉजिकली दे विल थिंक हाँ इट्स ओके, रात को ट्रैवलिंग करने से तो अच्छा यही है कि वो अपने फ्रेंड के यहाँ रुक जाए. So यहाँ से by using the foot in the door strategy, you have actually made sure your main request that was actually a big request got accepted. So this is the foot in the door strategy. Start with small steps and ultimately lead towards the main request by bringing the person to a stage wherein he or she cannot reject the idea. Okay. Going to the second strategy, door in the face. This is opposite. यानी कि आप अपना जो रिक्वेस्ट है वो इतना बड़ा कीजिए, स्टार्टिंग में इतना बड़ा रिक्वेस्ट आप लेकर आइए कि वो श्योर शॉट रिजेक्ट होगा, बट वो आपका एक्चुअल रिक्वेस्ट है ही नहीं. और क्योंकि आपने सामने वाले को पहला वाला यू आर 100% श्योर दैट द पर्सन इज गोइंग टू रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट, then comparatively come to a very small request which will be accepted. So let us understand this with an example. For example, आप डोनेशन मांगने के लिए जाते हैं, तो आप अपने नेबर के पास डोनेशन मांगने के लिए जाते हैं एंड यू आस्क देम दैट अंकल और आंटी kindly give me 5,000 rupees donation for this particular cause. Now 5,000 rupees is a big amount if you're asking for donation. The people might many people in fact will outrightly reject it. यानी आपको पता है वो रिजेक्ट होने वाला है, वो कहेंगे कि नहीं नहीं हम इतना अमाउंट नहीं दे सकते, ये बहुत ज्यादा है, हम डोनेशन नहीं देंगे. यानी कि आपने जानबूझ के कितना बड़ा अमाउंट बताया है कि जो रिजेक्ट होगा. उसके फिर आप कहेंगे ओके तो क्या आप 1,000 रुपीज दे सकते हैं आंटी. then they will say no, 1,000 is also too it's a big amount for this. Okay, can you give 500 rupees or maybe 250 rupees? So then they will think, अरे 5,000 से 250 rupees, so it's okay. Yes, I'll give you 250 rupees. So this is the door in the face strategy. यानी कि आपने इतना बड़ा रिक्वेस्ट जो कि आपका असली रिक्वेस्ट था ही नहीं, वो आपने सामने वाले के सामने रख दिया, जो कि यू आर वेरी श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी रिजेक्टेड. एंड देन व्हेन दे reject that idea or that request outrightly, you then put forth a very small, comparatively जमीन आसमान का फर्क है, 250 रुपीज कहा 5,000 कहा, तो 5,000 ये रिजेक्ट कर लिया, 1,000 भी बीच का एक मिड आप लेकर आए जो रिजेक्ट कर लिया, उसके कंपैरिजन में अगेन 250 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट. एंड देन दे विल थिंक अरे 250 तो ठीक है हम दे सकते हैं. एक्चुअली आपका था 250 ही आप चाहते थे, आप 300 में भी आप चाहते थे, बट आपको अगर आप डायरेक्टली शायद दे 250 डिमांड करते तो शायद उतना भी आपको नहीं मिलता, मे बी आपको 10 रुपीज मिलता या फिर 20 रुपीज मिलता या एट द मोस्ट 50 रुपीज मिलता. सो ऐसा ना हो, इसीलिए आपने स्टार्टिंग में इतना ह्यूज अमाउंट कोट किया विच इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड, एंड देन यू कम अप विथ a very minimal amount in comparison with your initial request that any person is going to accept, because उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट है. सो दिस इज द डोर इन द फेस स्ट्रैटेजी. मूविंग अहेड, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज लो बॉल. सो दिस यूजुअली इज यूज्ड इन मार्केटिंग. अभी अगर आप ये डायग्राम प्रॉपरली देखें तो इसमें बताया गया है कि एक पर्टिकुलर डील आप सामने रखते हो, कस्टमर के सामने रखते हो, यूजुअली यूज इन एडवर्टाइजमेंट्स, यूजुअली यूज इन मार्केटिंग एक्सेट्रा. सो you usually pitch a certain what you say stuff in front of the, or a deal in front of the customer, and then वो customer को लगता है oh this is a good deal, I can go ahead with it. और उसके बाद जब वो डील एक्सेप्ट करता है, मे बी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाता है, दैट टाइम यू पिच इन oh I did not include GST in this. एंड अभी क्योंकि वो उस पर्टिकुलर स्टेज पे आ गया है और आपने जीएसटी के बारे में बताया जो कि अनडिनाइबल है, आपको डालना ही पड़ेगा, देन दैट पर्सन इज लाइक ओके दैट्स फाइन, आई एम रेडी टू पे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज एक डीलर $200 में बेच रहा है. सो कंपैरेटिवली दिस पर्सन थिंक्स ओ जस्ट $200, and maybe that of course that stuff is very important for him, जो कि $200 वो देने के लिए रेडी हो गया. I'm in, I'm okay, I'm going to purchase this. और जब वो साइन करने के लिए या फिर
पेमेंट करने के लिए जाता है, दैट टाइम आपने कहा ओ आई डिड नॉट टेल यू दैट इट्स एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस, सो मे बी ओवर हियर आई एम गोइंग टू ऐड $100 मोर। तो अगर आप इनिशियली $300 कहते तो शायद वो बंदा कहता नहीं जरूरी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। बट जब आपने कहा $200 में आपको इतना अच्छा डील मिल रहा है, एंड द पर्सन फील्स दैट यस दिस इज इन, आई एम ओके, मुझे आई कैन अफोर्ड दिस, फिर आप कहते हो कि जब वो खरीदने जाते, जब वो पेमेंट करने जाता है, दैट टाइम आप कहते हो कि टैक्सेस मैंने इन आई डिड नॉट इंक्लूड द टैक्सेस इन द फाइनल अमाउंट, सो दिस वाज एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस। राइट नाउ आपको टैक्सेस को मिला के आपको 300 या $350 देना होगा, भी टैक्सेस को आप डिनाई कैसे करोगे? और क्योंकि आप ही ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये डील अच्छा है, इसीलिए फिर you will tell okay that's fine, I'm going to still take that particular stuff, I'm still going to purchase the material. So this is a strategy that is called low ball, which is very beautifully used in marketing. Almost everywhere it is used. Okay, going ahead, the next strategy is that's not all technique. So ये भी है, वो भी है, बहुत कुछ है, आप ऐसे बहुत सारे डील्स बताते हो। अगेन ये एडवर्टाइजमेंट या चीजें बेचने में बहुत कॉमनली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, से फॉर एग्जाम्पल अ फेस क्रीम फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्रांड, नाउ व्हेन आई एम एंड आई हैव दैट ऐप इंस्टॉल्ड इन माय फोन, सो जब उस पर्टिकुलर ऐप में मुझे एक्सक्लूसिवली पता चलता है कि सेल्स इज देयर, सेल्स इज देयर, तो सेल्स नाम देखकर मैं इमीडिएटली उसे ओपन करूंगी। तो जैसे मैं सेल्स देखती हूँ, इट्स नॉट ओनली वन एस्पेक्ट दैट इज देयर, दे माइट से कि ओके फेस के क्रीम्स या लोशंस वगैरह में आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, एंड व्हेन यू क्लिक ओवर देयर ओके 50% डिस्काउंट, चलो एक बार हम गो थ्रू करते हैं। और फिर जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पे और कोड आएगा कि मे बी इफ यू टेक two, instead of purchasing just one cream, if you take two creams, then you will get an additional 5% discount. So ये क्या हो रहा है, सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा हम आपको ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलो सिर्फ सेल्स नहीं है, दैट वाज द फर्स्ट थिंग, सेल्स में आई एम गेटिंग 50% ऑफ, दैट इज अगेन अ थिंग। थर्ड, अगर आप एक के बजाय दो खरीदोगे तो मैं आपको और 5% डिस्काउंट दे रहा, सो अगेन दिस इज ऑल्सो देयर। ओ सो आप क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ये होने के बाद जब आप मे बी चेकआउट के तरफ आते हो, वहां पे आपको बोला गया है कि if you do the online payment instead of cash on delivery, then online payment especially from these particular apps आपको कैशबैक इतना मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम आपको एडिशनल 2% डिस्काउंट मिलेगा। सो यहाँ पे वो आपको बताया जा रहा है कि हम आपको ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, प्लस अपना प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, आपको कितना सस्ते में मिल रहा है। सो अगेन यू गेट कि ठीक है हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू गो अहेड विद दिस ऑनलाइन पेमेंट। आफ्टर ऑनलाइन पेमेंट देन अगेन जब आपने सब कर दिया, देन अगेन दे माइट कम अप विद अ फ्लैशिंग मैसेज दैट refer our particular brand to your friends, so once they purchase their first product from our app, you will get 100 rupees in your wallet, as well as your friends will also get. So again आपको खरीदने के बाद भी आपको बोला जा रहा है कि आप रेफरल कीजिए, तो फिर आपको ये भी चीज मिलेगी, यानी कि अनलिमिटेड सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं। तो ये भी, दैट्स व्हाई ये by using this particular technique, usually the brands are successful in convincing the person that okay purchase this particular product during the sales time, because हम आपको इतने सारे चीजें दे रहे हैं जो कि आप डिनाई ही नहीं कर सकते। शायद जरूरी नहीं है मुझे फिलहाल वो क्रीम, आई ऑलरेडी हैव इट इन स्टॉक, बट आफ्टर सीइंग सो मेनी थिंग्स, दैट्स नॉट ऑल टेक्निक को जब अप्लाई किया जा रहा है, आई थिंक कि चलो ना एक और अभी मैं ले लेती हूँ तो मेरे इतने सारे फायदे, क्या होगा, खत्म हो जाएगा तो आई ऑलरेडी हैव इट इन स्टॉक, नो तो नुकसान तो नहीं है बोलकर मैं खरीदूंगी। सो दिस इज दी दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। Next is ingratiation. If you see the figure, it simply tells कि हम साथ साथ है type, which means कि if I like you, I'm going to listen to you, और हाँ I cannot deny your request. So यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको पसंद करे, I mean आपका request accept करे, तो make the person like you. For example, if I am giving a presentation in front of the panel and in front of the other colleagues or students, तो वहां पे अगर पैनल जो बैठता है यूजुअली दे हैव अ न्यूट्रल फेस एंड दे जस्ट लिसन टू यू, और आपको भी नर्वसनेस होता है,
So that time, if one of my friends or a few of my colleagues are looking at me and then they are telling, nodding, and they are actually helping me or motivating me कि मेरा confidence बढ़ा रहे हैं वो, तो naturally इतने सारे भीड़ में मेरा ध्यान सिर्फ उन लोगों की तरफ जाएगा जो सर हिला रहे हैं या स्माइल कर रहे हैं मेरे प्रेजेंटेशन के वक्त. Indirectly it's a non-verbal type of communication through which I'm getting motivated and I'm feeling that yes, my presentation is in sync. So after the presentation, naturally they might come to me and tell, oh Divya, the presentation was good. So यहाँ से क्या होगा कि I will start liking them and कि yes, they motivated me, they appreciated me. So एक liking develop होता है, एक friendship develop होता है. अभी जब next time अगर उसने मुझे कुछ request किया कि for example, do you have notes on this particular topic? Because I couldn't make the notes. Now since this person has helped me, or I like the person, I consider the person as my friend, I cannot say no. I will tell, don't worry, मेरे पास notes है, मैं तुझे अपने personal notes देती हूँ. मैं क्यों उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रही हूँ? It's because of ingratiation. That is because I like the person. So this is the next strategy that usually people do employ. Okay. Going ahead, the next strategy is self-deprecation, which simply means be modest. आपको वो चीज एक्चुअली चाहिए, बट ऐसे दिखाइए कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है. नो नो, इट्स ओके. अगर आपने मुझे नहीं दिया देन ऑल्सो इट्स ओके. आप किसी और को दे दीजिए. जानबूझकर ऐसी चीजें बोलना. इतना मॉडेस्ट हो जाइए कि सामने वाला आपसे इम्प्रेस होकर कहे कि दिस पर्सन डिजर्व्स this particular maybe an award, or this person deserves the appreciation or the recognition, but still वो बंदा इतना modest होके एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली इसी को देना चाहिए. सो दिस इज अगेन अ स्ट्रैटेजी. मुझे एक्चुअली वो चीज चाहिए, बट मैं बोल रही हूँ कि मुझे वो नहीं चाहिए, जानबूझकर आई एम बीइंग मॉडेस्ट, so that the person will feel, oh, such a humble person, and even though he or she deserves it, but still वो मना कर रहा है. So that is self deprecation. Next is self disclosure. खुद के बारे में इतना बता दीजिए कि सामने वाला इमोशंस में बहकर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले. मे बी आप ये कह रहे हो कि आप बहुत बीमार हो, बीमार चल रहे हो, यू हैव फेसिंग हेल्थ इश्यूज, मे बी यू आर ऑल्सो फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यू आर ऑल्सो हैविंग सम फैमिली इश्यूज एक्सेट्रा. जानबूझकर आप अपने बॉस को जाकर ये सारी बातें बताते हो, या फिर मे बी आप जानबूझकर अपने प्रिंसिपल या अपने टीचर्स को ये बात बताते हो, और आपका असाइनमेंट ड्यू है नेक्स्ट वीक को, बट आपने अपने बारे में इतना कुछ बता दिया है कि वो टीचर को फील होता है, ओ दिस पर्सन इज और माय स्टूडेंट इज ऑलरेडी अंडरगोइंग सो मच ऑफ स्ट्रेस. वो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसके फैमिली में सब सही नहीं चल रहा, बेचारे की हेल्थ हमेशा ऊपर नीचे रहती है. उसमें हाउ विल माय स्टूडेंट मैनेज टू कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम? नो इश्यूज, आप 1 महीने का एक्सटेंशन ले लीजिए और आप अपना असाइनमेंट मुझे 1 महीने बाद दे दीजिए. इनफैक्ट अगर आपको असाइनमेंट में कुछ और दिक्कत भी आ रही है, यू कम एंड स्पीक टू मी, आई विल गाइड यू. सो विच स्ट्रैटेजी इज अप्लाइड ओवर हियर? इट इज सेल्फ डिस्क्लोजर. खुद के बारे में इतना बता दीजिए कि सामने वाला इमोशंस में बहकर आपकी बात मान ले. यहाँ पे रिक्वेस्ट था टू गिव मी एन एक्सटेंशन ऑन द असाइनमेंट. अगर मैं डायरेक्ट पूछती तो शायद टीचर ये कहती कि आई हैड गिवन this extension, I mean this, I had declared this assignment long back, but आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं, एक बार भी आप मुझसे गाइडेंस लेने के लिए भी नहीं आए. And now all of a sudden जब the assignment is due next week, आप अब अचानक से आके मुझसे एक्सटेंशन मांग रहे हो. मैं नहीं देने वाली एक्सटेंशन. इनफैक्ट अगर आपने उस टाइम मुझे नहीं दिया तो मैं आपके इतने % मार्क्स काट दूंगी. मे बी आई विल कट योर 10 मार्क्स, और मे बी आई विल कट योर 50 मार्क्स. तो अगर ऐसा आप डायरेक्ट बोलते तो टीचर शायद नहीं मानती, क्योंकि जेन्यून था कि आपने कुछ नहीं किया, आप सोते बैठे थे. बट बिकॉज यू आर टेलिंग अ स्टोरी, यू आर टेलिंग अबाउट योरसेल्फ, नाउ वेदर यू आर टेलिंग द ट्रूथ और यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, द टीचर इज नॉट गोइंग टू गो एंड चेक. बट आपने इतना सारा अपने बारे में बता दिया कि टीचर इमोशंस पे बह के कहते हैं नो प्रॉब्लम डियर, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एक्सटेंशन. इनफैक्ट अगर इससे भी ज्यादा आपको एक्सटेंशन चाहिए तो मैं वो भी देती हूँ. आपको कोई इश्यूज है, समझ में नहीं आया, मेरे पास आइए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. This is because of the strategy called self-disclosure. The next strategy is complaining. In complaining strategy, basically what happens is
सामने वाले को इतना फ्रस्ट्रेट कर दो कि वो इरिटेट होकर आपकी बात मान जाए. फॉर एग्जाम्पल, you don't want your flatmate or your roommate to switch on the TV. You're getting irritated with the TV. TV is noise because maybe you're working on some assignment. But वो बंदी free है, वो अपना TV on करके enjoy कर रही है, maybe in some other room. But over here, you keep on complaining. Directly बोलोगे कि आप TV बंद कीजिए, मुझे ये काम करना है, वो नहीं मानेगी. वो कहेगी मैं भी इस फ्लैट का रेंट देती हूँ, मैं इस रूम में हूँ, आप दूसरे रूम में दरवाजा बंद करके कीजिए. But you really don't want the person to watch the TV because you actually get disturbed. आपको एकदम peaceful environment में काम करने की आदत है. तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे? जानबूझ के बार बार जाके उस बंदे को इरिटेट करेंगे, चिल्लाएंगे, उसके कान में जाके बड़बड़ करेंगे कि आई एम गेटिंग इरिटेटेड, आप कुछ समझते नहीं हो, ये नहीं है, टीवी तो बाद में भी देख सकते हो, टीवी में सब कुछ रिपीट ही होता रहता है, मेरा ये असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, सो एंड सो एंड सो. यू कंटिन्यूसली क्रिएट अ फाइट, यू कंप्लेन, इरिटेट, मतलब उसको भी शांति से बैठने नहीं देते, बड़बड़ करने लगते हो. The person gets frustrated finally, switch TV का switch off करके, either the person will walk away from that particular room or maybe go and sleep or do whatever. But because of this complaining strategy, आपका काम तो हो गया, now you are happy, you will sit and do your assignment. So this is again a strategy that is commonly used, which is said to be the complaining strategy of compliance. So with this, we have completed the strategies of compliance today. Hopefully you all have understood. This is a very important concept when I speak about UGC NET or in fact even SET. Compliance, conformity, obedience, इस पे एक या दो questions पक्के आते हैं. Social psychology में one of the most important concepts is compliance, and strategies of compliance पे definitely concepts आते हैं. Basically, they give you examples and then they tell you to identify which strategy the person is using in order to make sure that the compliance takes place. Okay, so with this, hopefully you'll have understood the concept, and I am now ending the meeting, and hopefully you all have understood the concept well with the help of examples. Please do like, subscribe to my channel, and please do comment. I will be coming back with more interesting concepts in future. So that's it from me today. We will be meeting soon. Thank you so much. So have a nice day. Bye-bye.